بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقاب سلطان عماد الدین زنگی کے دور کی کہانی، ایپیسوڈ نمبر 2۔ دامن شب دراز ہو چکا تھا اور رات پوری طرح اپنے شباب میں لہرا رہی تھی۔ شمامہ کے مکان کی دیوار کے قریب تین جوان جو اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے وہ رک گئے۔ ان میں سے ایک ثقلان تھا، اس پولوس کا بھائی جسے اس کے ساتھیوں سمیت عامر نے دریائے ابانا کے کنارے قتل کر دیا تھا، اور دوسرے دو اس کے ساتھی تھے۔ تینوں چند لمحوں تک خاموش رہ کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ چاروں طرف سکون چھایا ہوا تھا۔ گلی میں سامنے والے مکان سے باہر کچھ بکریاں بندھی ہوئی تھی جن کے اندر بکریوں کا چرواہا سویا ہوا تھا۔ ثقلاج نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، تم دونوں باہر ہی کھڑے رہو، میں دیوار پھاند کر اندر جاتا ہوں اور شمامہ کو اٹھا لاتا ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے اس بات میں اپنی گردن ہلا دی اور ثقلاج دیوار پھاند کر شمامہ گھر میں کود گیا۔ وہ ایک معمولی نوعیت کا مگر صاف ستھرا گھر تھا۔ بائیں ہاتھ ساتھ ساتھ دو کمرے تھے جن کے سامنے چھوٹا سا ایک صحن تھا۔ ثقلاج سیدھا اس کمرے میں گیا جس کے اندر شمامہ سوئی ہوئی تھی۔ ثقلاج کا ارادہ تھا کہ وہ سوئی ہوئی شمامہ کو اٹھا کر لے جائے گا، لیکن جب وہ قریب ہوا تو شمامہ گھبراہٹ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور غضبناک آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور رات کے اس وقت میرے کمرے میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ ثقلاج نے طنزاً کہا، تم ایک رقاصہ ہو اور جس کے پاس بھی رقم ہو وہ یہاں آ کر تمہارا رقص دیکھ سکتا ہے، پھر میرے یہاں آنے پر اعتراض کیسا؟ شمامہ نے زہریلے لہجے میں کہا، میں رقاصہ ضرور ہوں، قباحہ نہیں۔ میں بازاروں میں رقص کر کے اپنی روزی کما کر ضرور کھاتی ہوں، لیکن اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے کسی کو اپنے گھر دعوت نہیں دیتی۔ جس راستے سے آئے ہوں اسی راستے واپس چلے جاؤ۔ ثقلاج نے بھیڑیے جیسی آواز میں کہا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ شمامہ بھی پھپر گئی، کہاں جانا ہوگا؟ وہی جہاں ہم رہتے ہیں، اور وہاں تمہیں ہماری ہر خواہش کا احترام کرنا ہوگا۔ شمامہ نے ثقلاج کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا، کمینے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ غصے میں ثقلاج نے زخمی سانپ کی طرح بھوکارتے ہوئے کہا، ہمیں صرف عامر بن نافع کی طرف سے خوف تھا، آج وہ یہاں نہیں ہے، اپنے قبیلے میں گیا ہے، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کون چھڑائے گا؟ میں یہ بھی جانتا ہوں تم عامر بن نافع کو پسند کرتی ہو، لیکن اس وقت تک میرا بھائی پولس اور اس کے ساتھی عامر کی گردن کاٹ کر اس کے بے جان جسم کو درے آبانے میں پھینک چکے ہوں گے۔ شمامہ نے فکر گیر آواز میں کہا، عامر تم جیسی بھیڑوں سے نمٹنا جانتا ہے، میرا دل کہتا وہ زندہ ہے، یسوع مسیح کا خدا اسے لمبی عمر دے گا۔ ثقلاج نے آگے بڑھ کر جب شمامہ کو دبوچ کر اٹھا لینا چاہا تو شمامہ اپنی دفاع میں جد و جہد کرنے کے علاوہ زور زور سے مدد کے لیے بھی پکارنے لگی۔ ثقلاج نے اسے زبردستی اٹھا لیا اور جب وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکلنے والا تھا، ساتھ والے مکان سے دیوار پھاند کر کوئی اندر کود گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی اور چمکتی ہوئی تلوار تھی، وہ عامر کا بوڑھا باپ نافع بن کعب تھا۔ ثقلاج نے شمامہ کو چھوڑ دیا، فوراً اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور نافع سے کہا، شمامہ کے ساتھ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم بیچ میں دیوار نہ بنو، اور پھر تم بوڑھے، میرا تمہارا کیا مقابلہ، اور پھر شمامہ کو میں اپنے ساتھ لے جانے کا عہد کر چکا ہوں۔ بوڑھے نافع نے اپنی تلوار لہرا کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن تمہیں تنبیہ کرتا ہوں اپنے شعور اور حواس اور ہوش و خرد میں رہو۔ میرے قلب میں ایمان کی اتنی حرارت ضرور ہے کہ میں ایک بے بس لڑکی کی عزت بچانے کی کوشش کر سکوں۔ ثقلاج نے تکبر گیس لہجے میں کہا، اے بوڑھے انسان، میرے راستے سے ہٹ کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے اور مجھے شمامہ کو لے کر بہت جلد واپس لوٹ جانا چاہیے۔ نافع نے حقارت اور نفرت اور طعن کے لہجے میں کہا، اے بوسیدہ ذہن اور گندے ذہنیت کے جوان، میں شمامہ کی حفاظت میں تیری راہ ضرور روکوں گا۔ ثقلاج نے حملہ ور ہوتے ہوئے کہا، یہاں سے فوراً نکل جانے کے لیے پھر مجھے تمہارا خاتمہ ہی کرنا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے پر خطرناک وار کرنے لگے تھے۔ نافع گو بوڑھا اور ضعیف تھا، پھر بھی اس کے حملوں میں نصرت اور وقار تھا، پر کمزور اور ضعیف نافع زیادہ دیر تک ثقلاج کا مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ تھک کر چور ہو گیا اور ایک موقع پر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ ثقلاج جب اس کے پیٹ میں تلوار بھونکنے لگا، شمامہ بھاگ کر اس کے آگے ہو گئی اور ثقلاج کی تلوار دونوں کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ثقلاج اپنی تلوار نیام میں کر کے بھاگ گیا، شمامہ زمین پر گرتی ہی دم توڑ گئی۔ نافع بھی زمین پر گر گیا اور دیوار پھاندتے ہوئے ثقلاج کی طرف دیکھتے ہوئے نحیف آواز میں کہا، اے اجنبی قاتل، کاش میرا بیٹا یہاں ہوتا
तो मैं तुम्हारी सरताबी और बगावत, शहामत और दिलेरी और शुजात बहादुरी देखता। फिर बूढ़े नाफे बिन काब का सर एक तरफ ढल गया और वो खत्म हो गया। दूसरे रोज जब सूरज चढ़ आया था और धूप ने कोहिस्तानियों की चोटियों पर अपनी तमाज़त फैलाना शुरू कर दी थी, आमिर के घर के सामने रहने वाले चरवाहा जिसका नाम रबी था, इमाम यूसुफ फंदुलवी के दीवान खाने के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खोला। वो इमाम यूसुफ खंदूली थे। ये वही इमाम यूसुफ खंदूली थे जो इस वक्त ईसाइयों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे जब जर्मनी के बादशाह, फ्रांस के शहंशाह लुइस और यरूशलेम के ईसाई हुक्मरान बाल्टूट सालिस ने दमिश्क पर हमला किया था। खूब लंबे कद के बावकार बुजुर्ग थे। उनके कुछ बोलने से कबल ही रबी ने पूछा, क्या शहर के मुहतसिब जमालुद्दीन इस वक्त आपके घर में है? रबी की आवाज में बेचैनी और खौफ पनाह था। इमाम यूसुफ ने बड़ी हमदर्दी से पूछा, क्या किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? रबी ने कहा, पहले मुझे शहर के मुहासिब के पास ले चले, फिर आपसे पूरी दास्तान कहूंगा। इमाम यूसुफ एक तरफ हटते हुए बोले, अंदर आ जाओ। रबी दीवान खाने में दाखिल हुआ। अंदर शहर के मुहतसिब जमालुद्दीन बैठे हुए थे। उनकी उम्र 45 बरस के करीब हो गई। जिस्मानी साख्त में एक कड़ियल और दराज कद आदमी थे। रबी ने अंदर जाते ही जमालुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, मैं पहले आपके घर गया था, वहाँ आपके बेटे ने बताया कि आप इमाम यूसुफ के घर हैं, लिहाजा मैं इधर चला आया। मैं एक निहायत बुरी खबर लाया हूँ। आमिर के बाप और उनके हमसाया में रहने वाली ईसाई लड़की शमामा को रात के वक्त किसी ने कत्ल कर दिया है। जमालुद्दीन बदहवास सा होकर अपनी जगह पर खड़े हुए और कपकपाती आवाज में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? क्यों कर हो सकता है? किसको जसारत हुई कि वो आमिर के बूढ़े और बुजुर्ग बाप पर हाथ डाले? इमाम यूसुफ की गर्दन झुक गई थी और उनकी पलकें भीगती जा रही थी। रबी ने फिर कहना शुरू किया, मेरा नाम रबी है, मैं चरवाहा हूँ और आमिर के घर के सामने रहता हूँ। शमामा के घर के अंदर मैंने खुद आमिर के बाप और शमामा की लाशें देखी है। मैं रोजाना शमामा को दूध देने जाता था। आज सुबह जब मैं गया तो वहाँ दोनों की लाशें पड़ी थी। किसी ने दोनों के सीने में तलवार उतार दी थी। आमिर घर पर ना था, वो अपने चाचा के पास अपने कबीले में गया हुआ है। गमजदा आवाज में जमाल ने कहा, मुझे खबर है, वो मुझे बताकर और मुझसे मिलकर गया था। इमाम यूसुफ पहली बार बोले और अपने गुस्सीले और गरजती आवाज में कहा, जमालुद्दीन, नाफे और शमामा के कातिलों का सुराग जरूर मिलना चाहिए। खुदा की कसम, मैं उस वक्त से खौफजदा हूँ जब आमिर वापस लौटेगा। उसे अपने बाप के कत्ल की खबर होगी और मैं उसका सामना कर रहा हूँगा। इमाम यूसुफ और जमालुद्दीन फौरन वहां से निकल गए। चंद मुहाफिजों को उन्होंने अपने साथ लिया और रबी के साथ शमामा के घर आए। उन्होंने देखा दोनों की लाशें करीब करीब पड़ी थी, साथ ही नाफे की तलवार भी पड़ी हुई थी। जमालुद्दीन ने बड़ी हसरत से कहा, यूं लगता है बूढ़ा नाफे शमामा की जान और इज्जत बचाते हुए मारा गया है। इमाम यूसुफ जवाब में कुछ कहना ही चाहते थे कि वही बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए जिनका नाम अमीस था। उनके हाथ में बरबत था। शायद उन्होंने भी नाफे और शमामा के कत्ल की खबर सुनी होगी। चंद लम्हों तक वो दोनों लाशों को देखते रहे। फिर उन्होंने जमालुद्दीन और इमाम यूसुफ की तरफ देखते हुए ऐसी आवाज में कहा जिससे जिगर जिगर धक उठे, क्या दमिश्क का मुहतसिब इस कदर बेबस और बेपाहनी है कि वो कातिलों को महावर और नकील नहीं डाल सकता? क्या दमिश्क के लिए आशोक और आजमाइश नहीं कि एक कोहे जिगर और बाहौसला फर्जन का बाप मारा जाए और शहर में करार और सुकून हो, मोहल्लात पर सेहत और सुकून तारी हो और इंसाफ के लबों पर मोहर लग दी गई हो। अमीस चंद लम्हों के लिए रुके, फिर बेझिझक और बेदंग लबों में उन्होंने कहना शुरू किया, ऐ मुहतसिब, क्या ये उम्मीद रखी जाए कि इन कातिलों को उनके इस कत्ल की सजा जरूर मिलेगी? जमालुद्दीन ने बड़ी हमदर्दी से कहा, मेरे बुजुर्ग, इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह कातिल हमसे बच कर ना जाएंगे। जमालुद्दीन पीछे हटा और घूम फिर कर सहन का जायजा लेने लगा। उस जगह आकर अचानक रुक गया जहां से सकलाज दीवार फांद कर बाहर कूदा था। जमालुद्दीन ने फौरन बाहर गली में आया। इमाम यूसुफ, अमीस और रबी के अलावा 5 मुहाफिज सिपाही भी उसके साथ थे। गली में आकर उन्होंने देखा कि दीवार के करीब सकलाज जहां कूदा था वहां उसके जूतों के वाज़ेह निशानात थे। जमालुद्दीन ने फौरन सिपाहियों से कहा, पाँव के निशानात पर कोई चीज रख कर इन्हें महफूज कर लो। बेहतर शमामा के घर से पानी का कोई मटका उठा लाओ और उसका मुंह तोड़कर इन निशानात के ऊपर रख दो। सिपाही हरकत में आने ही वाले थे कि दाएं जानिब से आमिर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। जमालुद्दीन, इमाम यूसुफ और अमीस के चेहरे पर मायूसी के अंधेरे फैल गए थे। वो सब उसकी तरफ बढ़े। जब वो अपने सामने घोड़े से उतरा तो जमालुद्दीन ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन आमिर ने बोलने में पहल करते हुए कहा,
مجھے راستے میں ایک دوست کی وساطت سے خبر ہو گئی ہے کہ میرے باپ اور شمامہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قاتل کوئی بھی ہو، خواہ وہ المرزغانی ہی کیوں نہ ہو، میرے انتقام سے نہ بچ سکے گا۔ پھر عامر اندر چلا گیا۔ چند ثانیوں تک وہ اپنے باپ اور شمامہ کی لاشوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مدھم اور سلگتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں ایسے نشانات بھی ہیں جو یقیناً قاتلوں کے ہو سکتے ہیں۔ جمال الدین نے کہا، پاؤں کے نشانات مکان سے باہر دیوار کے ساتھ نہایت واضح ہیں، شاید قاتل وہاں سے کودا تھا۔ عامر نے جمال الدین سے کہا، مجھے وہ نشانات دکھائیے، میں قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ ایک بار وہ سب باہر آئے۔ عامر چند لمحوں تک پاؤں کے وہ نشانات دیکھتا رہا، اور جب وہ پیچھے ہٹنے لگا تو 10-12 سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں آئے۔ جمال الدین انہیں پہچان گیا۔ ان سب کا تعلق دمشق کے حاکم تاج الملک بوروی کے محافظ دستے سے تھا۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی کچھ کہتا، جمال الدین نے بولنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، تم کس کے لیے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے، جو شاید ان کا کمانڈر بن کر بھیجا گیا تھا، اپنے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہم عامر بن نافع کو لینے آئے ہیں، دمشق کے حاکم نے اسے طلب کیا ہے۔ جمال الدین نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، کیوں اور کس لیے؟ اس کمانڈر نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، مجھے علم نہیں کہ عامر بن نافع کو کیوں طلب کیا گیا ہے، تاہم یہ تاج الملوک بوروی کا حکم ہے کہ عامر بن نافع کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر وہ مزاحمت کرے تو اس پر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ قبل اس کے کہ جمال الدین کچھ کہتا، عامر نے اس کمانڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں عامر بن نافع ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ عامر نے جب اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی تو جمال الدین نے کہا، ہاں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عامر خاموشی سے ان سپاہیوں کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے ہمراہ جمال الدین، امام یوسف اور امیز بھی تھے۔ جمال الدین کے کہنے پر چرواہا ربی جمال الدین کے محافظوں کے ساتھ مل کر عامر کے باپ اور شمامہ کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرنے لگا تھا۔ دمشق کا حکمران تاج الملک بوروی اپنے محل کے اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ مقدمات کے فیصلے کرتا اور لوگوں کو انصاف مہیا کرتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی نشست پر وزیر طاہر المرزغانی تھا، اور اس کے دائیں طرف اس کے دو چھوٹے بھائی شمس الملک۔ تاج الملک بوروی کی وفات پر 526 ہجری کو شمس الملک دمشق کا حکمران بنا۔ اس نے اس جنگ میں بانیہ شہر عیسائیوں سے چھین لیا۔ عیسائیوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنانے کے غرض سے اس نے نور الدین زنگی کو اپنا امیر تسلیم کر لیا، جس پر اس کے سنگ دل ماں نے اسے مار ڈالا۔ شہاب الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ عامر کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جمال الدین اور امام یوسف اور امیز بھی اس کے ساتھ تھے۔ تاج الملک نے بڑے احترام کے ساتھ پہلے ان تینوں کو بیٹھنے کے لیے نشستیں دی، پھر اس نے اپنے سامنے کھڑے عامر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نافع کے بیٹے، میں ایک عرصے سے تمہارے خلاف شکایت سنتا آ رہا ہوں، لیکن میں خاموش تھا کہ تمہاری وجہ سے شہر کے امن کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب تم نے دریا آبانے کے کنارے شہر کے اسماعیلیوں کی ایک معزز رکن پولوس کو اس کے 3 ساتھیوں کی سمت قتل کر دیا ہے۔ اب بھی اگر ہم تمہارے خلاف حرکت میں نہ آئے تو دمشق شہر میں فسادات کی آگ بھڑک اٹھے گی، جس پر قابو پانا ہمارے لیے اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جائے گا۔ لہٰذا میں تمہیں آج ہی شہر بدر کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں بڑی سوچ و بچار اور تحمل سے کیا ہے، ورنہ کچھ لوگ مجھے تمہارے قتل کا مشورہ دے چکے تھے۔ کیا تم اس فیصلے کے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہو، جبکہ بہت نرم فیصلہ ہے اور تمہارے حق میں جاتا ہے؟ عامر کے بولنے سے قبل ہی جمال الدین کھڑا ہوا اور تاج الملک بوروی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو اس فیصلے کے متعلق میں بھی کچھ عرض کروں۔ بوروی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ تینوں کو اس فیصلے سے متعلق بولنے کی اجازت نہیں۔ میں جانتا ہوں تم تینوں عامر بن نافع کی طرفداری کرو گے۔ جمال الدین چپ چاپ بیٹھ گیا، تاہم وہ غمگین اور اداس تھا۔ امام یوسف اور امیز بھی افسردہ تھے۔ بوروی کے بھائی شمس الملک اور شہاب الدین کے چہرے پر بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس فیصلے کو قطعی پسند نہیں کیا، تاہم وزیر طاہر المرزغانی خوش تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ عامر نے پہلی بار بولتے ہوئے بوروی کو مخاطب کر کے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ اور میری ہمسائی لڑکی شمامہ کو بھی قتل کر دیا ہے، اور یہ اسی واقعے کی ایک کڑی ہے جس کے تحت پولوس اپنے ساتھیوں سمیت دریائے آپانا کے کنارے میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، حالانکہ میں نے اپنے دفاع میں اپنی تلوار بلند کی تھی۔ اور بوروی نے عامر کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم نے پولوس کو قتل کیا ہے اور اس کے لواحقین نے قصاص میں تمہارے باپ کو قتل کر ڈالا۔ میں تمہارے باپ کے قتل سے غافل نہیں ہوں، لیکن یہ تو قصاص ہے۔ اگر تمہارا باپ قتل نہ ہوتا تو میں تمہیں گردن زنی کی سزا سنا چکا ہوتا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ عامر واپس مڑا اور باہر نکل گیا۔ جمال الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور بوروی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے وزیر طاہر المرزغانی کے باعث دمشق میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ میں اپنے فرائض
खुश उसलूबी से अदा नहीं कर सकता, लिहाजा मैं मुहतसिब का अहद आपको वापस करता हूँ। मैं अपने आप को इस मनसब के काबिल नहीं समझता। मौलवी ने खुश्क लहजे में कहा, हम तुम्हारी समझदोशी को भी कबूल करते हैं। जमालुद्दीन भी इमाम यूसुफ और अमीस के साथ बाहर निकल गया था। अपने बाप और शमामा की तकफीन के बाद आमिर ने अपने घर का जरूरी असासा एक ऊंट पर लादा और जब शाम से कुछ देर पहले वो दमिश्क से कूच करके जाने लगा, अपने घोड़े पर ज़ेन डाल रहा था, जमालुद्दीन इमाम यूसुफ और दमिश्क के हुक्मरान बोरवी का भाई शमशुल मलिक इस्माइल के घर में दाखिल हुए। आमिर उनकी तरफ तवज्जो किए बगैर अपने घोड़े का तंग दुरुस्त कर रहा था। जब वो फारिग हुआ तो शमशुल मलिक ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, ऐ नाफे के नूरुल आइन, यहाँ से रुखसत होते वक्त अपने चेहरे पर गम और अलम की गिर्द ना उड़ने देना। ये ना समझना कि तुम कोई बेकीमत शय हो और तुम्हारा कोई साथी और हम सफर नहीं है। रब्बे समावात और अर्ज की कसम, हम तुम्हारे हामी और नासिर और मददगार और मुईन बनकर काम करते रहेंगे। शमशुल मलिक चंद सानी रुका, फिर दर्द में डूबी और घटी घटी आवाज में कह रहा था, याद रखो एक रोज जुल्म की सीना चीर कर करवटें लेता कोई तूफान उठेगा और दमिश्क के खिजा रसीदा लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चिंगारियों जैसी रोशनी होगी। उस रोज कौम के अकाबिर बेदार होंगे और वहशत और बर्बरियत की परछाइयां हमेशा के लिए गुरूब होगी। हम जानते कि वजीर ताहिर अल मर्ज़गानी दमिश्क में क्या खेल खेल रहे हैं। इस मामले में मेरा छोटा भाई शहाबुद्दीन भी मेरा हमराज है। वो यहाँ मेरे साथ आने पर बजीद था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं तुम्हारे साथ मुलाकात को राज में रखना चाहता हूँ। मुझे एहसास है तुम्हारा यहाँ से कूच करना कितना दिल फिकार है। शमशुल मलिक जब जरा देर रुका तो इमाम यूसुफ ने आमिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे मौत की तारीख हवीले और बेयकीनी के धुंधुल के ज्यादा देर ना रुकेंगे। एक रोज जुल्म और इस्तिबरार की जंजीरें टूटेगी। दमिश्क में जिस कदर जहरीले सांप है उनका फन कुचला जाएगा और जालिम और गद्दार अपने खौल से बाहर खड़े होंगे। आमिर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं। मैं मुतमईन हूँ कि दमिश्क में मेरे आप लोगों जैसे मुरब्बी और मेहरबान भी हैं। मैं अनकरीब अपने बाप के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए फिर दमिश्क शहर में दाखिल होऊंगा। जमालुद्दीन ने आगे बढ़कर आमिर को गले लगाते हुए कहा, उस काम में हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। दमिश्क के आसमान पर ताहिर अल मर्ज़गानी एक मनहूस इंसान है, पर अनकरीब एक नई सुबह का आगाज होगा जब तूफान के साए सिमट जाएंगे। मैं बड़ी बेताबी से उस रसदार, रंगीन और खूबसूरत सुबह का इंतजार करूंगा जब तुम दोबारा बाइज्जत तौर पर दमिश्क में दाखिल होंगे। अब तुम यहाँ से कूच कर जाओ, सीधे अपने चाचा के पास जाना ताकि हम तुम्हारे साथ राब्ता कायम रख सके। उस मकान को मकफूल कर जाना, हम उसकी हिफाजत करेंगे। वो तीनों आमिर से मिलकर चले गए। आमिर अपने ऊंट और घोड़े को लेकर बाहर आया। दरवाजे को बाहर से उसने कुफल लगाया, ऊंट की नकील घोड़े की जेन के पीछे बांध दी। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और कूच कर गया। दमिश्क शहर से बाहर निकलने के बाद आमिर जब बाबे तुमा, दमिश्क शहर के एक दरवाजे का नाम है, बाबे तुमा के पास आया तो उसने देखा वहाँ अमीस बिन खजन एक इमारत के सामने खड़ा था। उसके हाथ में बरबत था और वो गा रहा था। अमीस की सीध में आकर आमिर रुका और उसे सुनने लगा। सहरा की गर्म हवाओं उठो और दमिश्क के उन ऐवानों में आग लगा दो जहाँ इंसाफ का तराजू अय्यार और मक्कार लोगों के हाथों में दे दिया गया है। गर्म रेत के तपते रेत गुजारो उड़ो और ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी से महरूम कर दो जो दोस्त, दुश्मन, गद्दार और मुहब्बे वतन में तमीज नहीं कर सकते। काश कि दमिश्क में ऐसे अकाबिर होते जो अबू बकर की सदाकत, फारूक आजम की इंसाफ, उस्मान की जानिसारी और अली की शुजात को तलाश करके संगदिल हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते। अमीर बिन खजन आमिर को देखकर चंद सानियों तक रुका। वो आमिर को दमिश्क से कूच करते देखकर अफसुर्दा और गमगीन हो गया था। फिर वो संभला और अपनी शर्मदी आवाज में गाता चला गया, ऐ मेरे दोस्त, देख तबाही और बर्बादी ने दमिश्क पर अपने सियाह पर्दे डालने शुरू कर दिए हैं। मुझे उस घर की कसम जिसके गिर्द लोग तवाफ करते हैं, मैं इस तबाही और अजाब से कब्ल ही दमिश्क छोड़ दूंगा जिसमें अब दायमे गम और सियाह रात की सख्तियों के अलावा कुछ ना होगा। काश कोई नौसीदा और मुअल्लिफ, कोई मुस्लिह और आमिल, कोई अदीब दवाना दमिश्क के हुक्मरानों को सीधी राह की तरफ गामजन कर चुका होता। अमीर बिन खजन खामोश हो गया। बरबत पर खेलती हुई उसकी उंगलियां भी रुक गई थी। फिर अपनी गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता आमिर की तरफ बढ़ा। करीब जाकर उसने नजर भर कर आमिर को देखा। फिर उसने दिले फिगार आवाज में कहा, नाफे के बेटे, बेशक तेरी हालत इस वक्त मुसाफिर जैसी है।
जिस पर हर वक्त गम छाए रहते हैं। मैं तुम्हारी इस वक्त की वापसी का इंतजार करूंगा जब तुम दमिश्क के अंदर इब्लिस के इमाशतों के लिए मौत का फर्जंद अदावत का जिगर बनकर आओगे। अमीर बिन खजन खामोश हो गया। आमिर ने महसूस किया उसकी आवाज में खाना बदोशों की गीत जैसा सोज और किसी भटके हुए और मदद के लिए पुकारते मुसाफिर जैसा दर्द था। आमिर चंद लम्हों तक निहायत एहसानमंदी के से अंदाज में अमीर को देखता रहा। फिर दिलगीर सी आवाज में उसने कहा, मेरे बुजुर्ग, मैं जहाँ कहीं भी हूँ तुम्हारी शफकत और तुम्हारे खुलूस को फरामोश ना कर सकूंगा। मैं खुश और मुतमईन हूँ कि दमिश्क में अभी तक जमालुद्दीन, इमाम यूसुफ फंदुलवी और आप जैसे लोग मौजूद हैं। मैं अब आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ। इसके साथ ही आमिर ने अपने घोड़े को मुहिज लगा दी थी। अमीर बिन खजन वही खड़ा होकर उसे देखता रहा। जब आमिर बाबे तुमा से निकलकर उसकी नजरों से उछल हो गया तो उसकी गर्दन झुक गई और वो मुड़ा और बेजोड़ कदमों से शहर के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगा था जहाँ दमिश्क का बड़ा बाजार था। शाम गहरी रात में ढल गई थी। चांद अब खूब तेज होकर जिगमगा रहा था। खजूर, इंजीर, अनार और सेब के बागात चांदनी में नहा गए थे और आमिर बनो अब्स की बस्ती बिलास में अपने चाचा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और आमिर का चचा जाद भाई अदनान सामने खड़ा था। चंद लम्हों तक वो आमिर को देखता रहा। फिर बड़ी हमदर्दी से उसने पूछा, ऐ मेरे अमजाद, तू उदास और दिलगीर, परेशान और महजून और खामोश और हैरान क्यों है? आज तुम्हारे साथ ऊँट क्यों है और इस पर तुमने अपने घर का सामान क्यों लादा रखा है? आमिर खामोश रहा। इतनी देर तक उसका चाचा अमर बिन काब और अमजाद बहन उरूब भी दरवाजे पर आ गए थे। उरूब ने आमिर का बाजू पकड़कर झिझोड़ते हुए कहा, या अखी, आप चुप क्यों हैं और आपने भाई के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? अमर बिन काब भी आगे बढ़ा और आमिर को अपने साथ लिपटा कर अंदर ले गया। अदनान उसके ऊँट और घोड़े को अस्तबल में ले गया और ऊँट के गट्टे पर महार की रस्सी मारकर जमीन पर बैठा दिया था। फिर भी वो उस जगह आ गया जहाँ अमर बिन काब और उरूब अंदर आकर बैठ गए थे। अमर बिन काब ने बड़ी शफकत से पूछा, ऐ मेरे भाई के फर्जंद अजीज, तेरे साथ क्या बीती जो तू उदास है और अपने घर का सामान भी ले आया है? आमिर ने पिघली हुई आवाज में कहा, मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया है और मुझे दमिश्क शहर से निकाल दिया गया है। अमर बिन काब चिल्ला उठा, कैसे और क्यों कर मेरा भाई मारा गया? जवाब में आमिर उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुना रहा था। आमिर जब खामोश हो तो अमर बिन काब ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये कत्ल किसने किया है? आमिर ने अपनी खोलती हुई आवाज में कहा, ये काम दमिश्क के वजीर अल-मरज़गानी का है और मुझे शक है कि मेरे बाप के कातिल एक इस्माइली सखलाज है जिसका भाई पुलिस मेरे हाथों दरिया अफाना के किनारे मारा गया था। इस शक की बुनियाद मैंने दमिश्क के हुक्मरान बुरवी की गुफ्तगू से कायम की है। अमर बिन काब ने कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त नहीं। इस कत्ल के जिम्मेदार बनो ज़ेबान है जो हमारे अजली और अब्दी दुश्मन है। अमर ने कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त नहीं है। इस कत्ल के जिम्मेदार बनो ज़ेबान है जो हमारे अजली और अब्दी दुश्मन है। आमिर ने फैसला कुल लहजे में कहा, आप गलती पर हैं, बनो ज़ेबान का इसमें कोई हाथ नहीं। अमर बिन काब ने तंबीहा करते हुए कहा, ताहिर अल-मरज़गानी के खिलाफ हरकत में ना आना। कातिल यकीनन बनो ज़ेबान से ताल्लुक़ रखते हैं। आमिर ने कहा, ऐ मेरे अपने कबाइली और सुबत को हवा ना दीजिए। मैं जानता हूँ कातिल कौन है और मैं मौत का हमजाद बनकर उन पर नाजिल होगा। उरूब ने दखल अंदाजी करते हुए कहा, ऐ मेरे बाप, इस बहस में ना पड़े, पहले भाई को खाना खाने दीजिए। अमर बिन काब खामोश हो गया। उरूब आमिर को खाना खिलाने लगी थी और अदनान आमिर के ऊँट से सामान उतार कर अंदर ले जा रहा था। बनो ज़ेबान का सरदार सालम बिन उकबा अपने घर के सहन में खजूर तोले बैठा हुआ था। उसका बेटा वलीद अस्तबल में अपने घोड़े को खिरा रहा था, जबकि उसकी बेटी नायरा सहन के दाएं तरफ सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। इतने में कबीले का एक जवान जो खूब कड़ियल और तवाना था घर में दाखिल हुआ और सालिम बिन उकबा के करीब आकर उसने जख्मी सी आवाज में कहा, सरदार, मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। सालिम ने चौंक कर पूछा, तुम कैसी बुरी खबर लाए हो? नकीब, शायद आने वाले का नाम नकीब था। नवारिद ने फिर कहा, मैं बनो अब्बास के आमिर बिन नाफे के मुतालिक आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आमिर का नाम सुनकर काम में मसरूफ नायरा के हाथ रुक गए थे और अस्तबल में अपने घोड़े को खिराता वो वलीद वहां से हटकर अपने बाप के पास आ खड़ा हो गया था। सालिम बिन उकबा ने पूछा, तुम आमिर बिन नाफे के मुतालिक क्या कहना चाहते हो? नकीब ने कहा, दमिश्क में आमिर के बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। सालिम बिन उकबा ने चौंक कर पूछा, आमिर के बाप को कत्ल कर दिया गया है? चूल्हे के पास बैठी हुई हसी नायरा उदास और गमजदा हो गई थी। नकीब ने फिर कहा,
आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। नायरा को अगवा होने से बचाने के लिए आमिर ने जिन 4 जवानों को दरिया के किनारे कत्ल किया था वो वजीर अल-मरज़गानी के आदमी थे और उसने दमिश्क के हाकिम बोरवी से कहकर आमिर को दमिश्क के शहर बदर कर दिया है। सालिम ने बेताब होकर कहा, आमिर बिन नाफे हमारा मोहसिन है, वो बाइज्जत आज़ादी का पासबान और जिंदा दिल और सरफरोश जवान है। मुझे बताओ वो शहर से निकलकर कहाँ चला गया है, मैं उसे अपने कबीले में ले आऊँगा। वो इन जवानों में से एक है जो सितारों के राज को खुली किताब की तरह पढ़ने का फन जानते हैं। नकीब ने फिर कहा, आमिर दमिश्क शहर से निकलकर अपने कबीले में आ गया है, अब वो अपने चाचा अमर बिन काब के यहाँ रह रहा है। सालिम ने फिर गमज़दा आवाज में कहा, तुम किसी तरह आमिर से मिलो और उसे मेरे पास ले आओ। उस जवान के ताउन से मैं बनो ज़ीबान और बनो अब्स की बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो ये मेरे लिए एक सादत होगी, लेकिन उससे मिलते हुए एहतियात बरतना। अगर किसी ने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो बनो अब्स आमिर से बदजन हो जाएंगे और जो काम मैं उसकी मदद से लेना चाहता हूँ वो दुश्वार और मुश्किल हो जाएगा। शायद तुम आमिर को नहीं पहचानते, उस काम के लिए तुम वलीद को साथ ले जाना। ये एक बार उसे देख चुका है। अल-मरज़गानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो शहर का खिजर और पासबान है और जब खिजर ही डुबोए और हथेली कौन देगा। बहरहाल आमिर बिन नाफे को मेरी बेटी को अगवा करने वालों के कत्ल के जुर्म में शहर से बदर कर दिया गया है, लिहाजा हम पूरी तरह और हर हालत में आमिर बिन नाफे के साथ देंगे। हम अपने मोहसिन को ख्वाह वो आपसी ही क्यों ना हो, बेबसी की हालत में मायूस और तन्हा नहीं रहने देंगे। नकीब ने मुड़कर बाहर निकलते हुए कहा, मैं चंद रोज तक आमिर से मिलने की कोशिश करूंगा। आमिर को अपने चाचा के साथ रहते हुए कई रोज हो चुके थे। बस्ती में उसका अपना घर भी था जो खाली पड़ा था, ताहम उसकी अमजाद बहन उरूब उस घर की सफाई और देखभाल का एहतमाम करती थी। यहाँ रहते हुए आमिर के ताल्लुकात अपने चाचा से होते जा रहे थे। उसके लिए आमिर अपने बाप के कत्ल का इंतकाम ताहिर अल-मरज़गानी के आदमियों से लेना चाहता था, जबकि अमर बिन काब अपनी इस जिद पर अड़ा हुआ था कि आमिर के बाप और उसके भाई को बनो ज़ेबान ने कत्ल किया है, लिहाजा आमिर को बनो ज़ेबान के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। आमिर चंद दिन और इंतजार करके सकलाज के खिलाफ हरकत में आना चाहता था ताकि उसके बाप का कत्ल आई की बात हो जाए और सकलाज का कत्ल उसके जिम्मे ना डाला जाए। लिहाजा वो किसी मुनासिब मौके की तलाश में था। इन दिनों वो दमिश्क का रुख भी ना कर रहा था ताकि उसके खिलाफ कोई और मामला ना उठ खड़ा हो। बहरहाल वो अपनी बस्ती तक महदूद हो गया था और अपने बागात और जमीन की देखभाल करने लगा था। वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरते रहे, साए घटते बढ़ते रहे, चांद डूबता रहा, सूरज तुलू होता रहा। बनो अब्स की बस्ती हिलास और बनो ज़ेबान की बस्ती हुरान के दरमियान जो कोहिस्तानी सिलसिला पड़ा था वो आधा बनो अब्स और आधा बनो ज़ेबान के पास था। ये पहाड़ घने दरख्त से उठा रहे थे और हर साल उन कोहिस्तानी जंगलात की काट छाट होती थी। उन दिनों भी दोनों बस्तियों के जवान उस पहाड़ी सिलसिले के दरख्तों की काट छाट कर रहे थे। आमिर और उसका अमजाद भाई अदनान भी उस काम में हिस्सा ले रहे थे। एक रोज जबकि दोनों कबीलों के जवान दरख्त काटते काटते एक दूसरे के सामने आए तो बनो अब्स के एक दराज कद और खूब कड़ियल से जवान ने बनो ज़ेबान के जवानों को आगे बढ़ने से रोका। बनो ज़ेबान के जवानों में नायरा का भाई वलीद बिन सालिम और उसके कबीले का शेर दिल फर्जंद मोहब्बत वतन और मजहब परस्त जवान नकीब बिन हुरा भी शामिल थे, जिसे अब्सी जवान ने बनो ज़ेबान के जवानों के आगे बढ़ने से रोका था। उसे मुखातिब करते हुए आमिर ने कहा, जाबिर जाबिर, तुम बनो ज़ेबान के जवानों को रोक कर गलती कर रहे हो। मैं जानता हूँ अपनी हुदूद में दरख्त काट रहे हैं। उस जवान ने बिगड़ते लहजे में कहा, तुम तो दमिश्क शहर में रह रह कर अंधे हो गए हो। मैं जानता हूँ हमारी हुदूद कहाँ तक है। आमिर कमाल सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए खामोश रहा और दोबारा दरख्त काटने लगा। उसका अमजाद भाई अदनान हैरान था कि बैग वक्त 4-4, 5-5 तेज जनों से मुकाबला करने वाला इसका जरी और बेबाक भाई चुप और खामोश क्यों हो गया है। दूसरी तरफ बनो ज़ेबान के जवानों के अंदर नायरा के भाई वलीद ने नकीब को मुखातिब करके आमिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नकीब नकीब, वो आमिर बिन नाफे है। नकीब ने कमाल रश्क में कहा, कसद राज कद और देव हैकल और उम्दा शख्सियत का जवान है। खुदा की कसम, ये इन कुहिस्तानों में लकड़ियां काटते हुए अच्छा नहीं लगता। ये काम उसे जेब नहीं देता। काश ये बनो अब्स का सरदार होता या किसी तनोखो और तूफानी लश्कर का सालार आला होता। इसकी सूरत से ऐसा लगता है कि लकड़ियां काटने के लिए नहीं, खुश मारका और जाबाज सिपाही बनने के लिए पैदा किया गया है। नकीब कहते कहते रुक गया क्योंकि बनो अब्स के जाबिर बिन असद ने एक बार फिर ललकार कर बनो ज़ेबान के जवानों को पीछे हट जाने को कहा था। आमिर ने इस बार जरा सख्त लहजे में उसे मुखातिब करके कहा,
जाबिर जाबिर, तुम अपनी बातों से दोनों कबाइल में जंग और लड़ाई के तबल बजाने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये बात तेरे लिए शर्म नहीं कि तुम्हारे 2 बार ललकारने के बावजूद बनो ज़ुबान के जवान चुप और पुरसुकून है, तो खुद ही उनसे यलगान और जंग करने पर तुला हुआ है। जाबिर बिन असवद ने खोलते हुए लहजे में कहा, वो सब तुम्हारी तरफ बुज़दिल है, इसलिए सब ने औरतों और जीन मुरीदों जैसी चुप सादा रखी है। कब इसके कि बनो ज़ुबान के जवान में कोई जाबिर की सख्त बात का जवाब देता। आमिर ने खौफनाक हालत में घबराते हुए कहा, असवद के बेटे, तू 2 बार मेरी अहमियत कर चुका है और मैं खामोश रहा। तीसरी बार तू बोला और कोई ऐसी बात की जिससे जिदाल और फसाद भड़के, तो याद रख, मैं गुद्दी से पकड़कर तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। याद रखना, मैंने जिंदगी का एक हिस्सा शहर में जरूर गुजारा है, लेकिन मैं अपने सहराई अंदाजे नक्शेगिरी नहीं भूला। खुदा की कसम, अगर तू ना संभला तो मैं तुझे अपने सब जवानों के सामने सर बसूलूं और दिल बुरीदा कर दूंगा। जाबिर ने खौफनाक अंदाज में धारते हुए कहा, नाफे के बेटे, तुम बुज़दिल हो। मैं 1000 बार कहता हूँ तुम बुज़दिल हो। अगर इसमें तुझे शक है तो आ मेरे सामने आ, मैं तुझे मुकाबले की दावत देता हूँ। आमिर ने कुल्हाड़ा जमीन पर फेंक दिया और उस अंदाज में जाबिर की तरफ बढ़ा जैसे रात की तारीकी में कोई तनों शिकार करने के घर से निकला हो। जाबिर ने भी अपना कुल्हाड़ा फेंक दिया और आमिर का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद हो गया। आमिर ने आगे बढ़कर जो ही जाबिर की गर्दन पर हाथ डालना चाहा, जाबिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आमिर बिजली की गूंजे की तरह हरकत में आया। उसने फौरन जाबिर को अपने दोनों हाथों में उठाकर हवा में बुलंद किया और फिर पूरी तरह जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने जाबिर पर पांव की ठोकरें की बौछार करते हुए कहा, जाबिर, अपना बागीपन दूर करो। हमारा बनो ज़ुबान से कोई झगड़ा नहीं, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं। जाबिर कोशिश करके उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसी लम्हे आमिर ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उस कदर जोर लगाकर जाबिर को नीचे की तरफ दबाया कि जाबिर की नाक जमीन से जा लगी। आमिर ने गरज कर कहा, आज मैं तेरी सारी सरकशी जाहिल करके रहूंगा। आमिर ने एक बार फिर जाबिर पर मुक्कों की बौछार की थी, हत्ता कि जाबिर ने मज़ाहमत तर्क कर दी और बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। आमिर पीछे हटा और अपने कपड़े फाड़ते हुए उसने कहा, अब तेरी बहादुरी का निश्तर उतार कर रहूंगा। अगर फिर कभी तूने ऐसे रवैये का इजहार किया तो फिर मैं हाथों से नहीं अपनी तलवार से तेरी खामियां और कोताहियां दूर करूंगा। जाबिर बिन असवद खामोशी से उठा, अपना कुल्हाड़ा उठाया और बददिली से दोबारा अपने काम पर लग गया था। दूर खड़े नकीब बिन हुरवा ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, ऐ शाहबाज, तू ही, मैं तेरी शुजाअत, तेरी अजमत को सलाम करता हूँ। काश बनो औस में तेरे जैसे चंद और जवान पैदा होते तो ये कबाइली उसूबत बरसों की दावतें कभी की खत्म हो चुकी होती। ऐ जाबाज, मेरी कौम की सादत और बरकत, तेरी मारका आरी और तेरी मंजिलत को एक बार फिर सलाम है। दोनों कबीलों के जवान अपने अपने हुदूद में रहकर दरख्त काटने लगे थे। दोपहर के करीब जब बनो अब्स के जवान काम खत्म करके वापस जाने लगे तो नाहिरा के भाई वलीद ने मौका देखकर आमिर को खुसूसी इशारा किया, जिसका मतलब था, मेरी बात सुनो। आमिर जरा रुक गया और अपने कबाइल के नौजवानों से कुछ पीछे रह गया। वलीद पलक झपकने में करीब आया और आमिर से कहा, आज मगरिब की नमाज के बाद अपने बाग में मेरा इंतजार करना। वलीद ने इतना ही कहा और दोबारा पीछे हट गया। आमिर अपने घोड़े की तरफ रवाना हो गया। बनो ज़ुबान के जवान भी अपनी बस्ती की तरफ लौट गए थे।